friends, we want to welcome you once again in the name of the Father, Son and Holy Spirit into this evening Bible study. प्रिय भाई और बहनों, हम सब आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की इस संध्याकालीन बाइबल अध्ययन में। पिछले दिनों हमने जो अध्ययन करा था उसका जो अध्याय था वो रोमियो चौथा अध्याय था और आज हम 5वें अध्याय के आराधना में भाग लेंगे, बाइबल अध्ययन में भाग लेंगे और मेरी आशा है कि आप इसके द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। Beloved friends, we want to welcome you in today's Bible study. Today the chapter we are going to study is Romans chapter 5. In the beginning few verses we will study today from 1 to verse 11. Now this is a very important study, dear friends, because it talks about our involvement in the plan of God. ये हमारे स्थान को हमारे परमेश्वर की योजना में हमारे कार्यकारी होने की बात को प्रकट करते हैं और आज हम इसको ध्यान से देखेंगे। पर इससे पहले कि अध्ययन को हम करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray as we start our Bible study today. Heavenly Father, we are grateful to you for today's time that you have given to us, so that we could use this time in studying your word. We pray, God, that speak to us and let this word may generate spiritual insight in us, so that in this time of pandemic time, Lord, or this COVID-19 time of confusion, time of uncertainty, we may be certain of your grace and presence in our lives. We thank you, Lord, for the life of Abraham and Sarai, who believed in you, Lord, and thus became blessing for entire universe. And this evening, Lord, as we study this word, we pray that speak to us. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन की तरह हमसे बातचीत करें, आप मेरी सहायता करें, हम सबों की सहायता करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we want to read a few verses from this chapter of Romans 5, and I read from 1 to 11. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have also obtained access by faith into his grace, in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us in that while we are still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more now that we are reconciled shall we be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Dear friend, these are very important words for us to understand and also ponder on it. I remember the time when I was to be the Acharya of Sattal Christian Ashram, the resident Acharya,
And during the program time, every Monday we had time of meditation, almost for 1 hour and 15 minutes. And that brought us near to God. In that meditation, we also saw ourselves, our reality, our actual lifestyle was portrayed as we meditated upon the Word of God. And so as we meditate upon this Word this evening, I hope that God is going to speak to us. प्रिय मित्रों, हम धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है आज, कि आज की सुंदर समय के दौरान हम प्रभु के वचन पर ध्यान दे सकते हैं। जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया, इसमें हम आज 6 बातों को देखेंगे। और इन 6 बातों में पहली बात है, जब हम पहला पद 5वां अध्याय, जब हम विश्वास धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। अब यहाँ पर मेल मिलाप की बात की गई है, जिस पर हम थोड़ा गौर करना चाहते हैं। मेल मिलाप किनका? उनका जिनको परमेश्वर अपने परिवार में शामिल करता है। और यहाँ पर इसके बारे में 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 16 से 21 पद में हम इसका वर्णन पढ़ते हैं। Read about the reconciliation in the second letter of St. Paul to the church at Corinth, chapter 5 verses 16 to 21। क्या लिखा है यहाँ पर? 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 16 से 21 क्या लिखा है यहाँ पर? अतः जब अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब यहाँ पर मेल मिलाप का जो उद्देश्य है, उसका वर्णन क्या उद्देश्य है? यहाँ साफ साफ लिखा है कि हम संसार में उसके प्रेम को दर्शाते हैं। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट एंड वी प्रोक्लेम हिज reconciliation, act of reconciliation, not merely by the message that God has given to us, but in and through our lives also. When you talk with people who are really today disturbed in this world because of the prevailing situation, because of the uncertainty, joblessness, less payment and no payment, it has become a challenging time. The much challenge has come to every family which has children. The children have been sitting in a home for last 14 months. बच्चे पिछले 14 महीनों से घर में बैठे हैं, स्कूल सारे बंद हैं। Nobody might have thought that this will happen. किसी ने शायद ये नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा। और स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, पढ़ने के सारे इंस्टीट्यूशन बंद है। एक डर है, अज्ञात डर, कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, खेलेंगे, जुलेंगे, तो उनको इन्फेक्शन लग जाएगा। और ये सत्य है। उससे बचाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया, पिछले साल भी लिया था, अब भी ले लिया, वो है लॉकडाउन। सब कुछ बंद कर दिया। यहाँ तक कि व्यापार संस्थान बंद है, दुकानें टाइम से खुल रही हैं, और बाकी जो संस्थाएं हैं उनमें लोग कम आ रहे हैं काम करने के लिए। गाड़ियों में लोग कम जा रहे हैं। चाहे हम किसी भी मोड की बात क्यों ना करें, एरोप्लेन की बात करें, ट्रेन की बात करें, बस की बात करें या कारों की बात करें, ये छोटे छोटे सवारियों की बात करें, लोग तभी घर से निकल रहे हैं जब इसकी आवश्यकता, नहीं तो वो घर में बैठे हैं। इसलिए ये समय एक प्रकार से अनिश्चितता का वातावरण। इसके बीच में हम ईश्वर के साथ मेल मिलाप की बात करें, ये बाइबल की खूबसूरती है, क्योंकि वो हमारे साथ मेल मिलाप करता है
कि बाहर रूप से तो हम निराश हैं, हताश है, लेकिन अंदर रूप से अंदर हमारा मेल मिलाप उसके साथ हो गया है। हम कभी भी प्रार्थना में परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं और ये हमारे सौभाग्य मित्र। गॉड हैज गिवन अस अप्रोच टुवर्ड्स हिज ग्लोरिफाइड दैट हेवनली थ्रोन। Anyone who has been reconciled with Jesus, with God through Jesus, has got that approach. Can go to Him anytime. There's no time set apart in the night you pray or morning you pray or daytime you pray. 24 hours is available, He is available. The moment you call Him, He listens to us. And that is why we need to be grateful to God that in this time of uncertainty, God is with us. And not only that, but He has given us the message of reconciliation. उसने हमारा मेल मिलाप ही नहीं करा, पर हमें उसने मेल मिलाप की सेवा दी है। हम संसार में लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। हमारे पास उस समाचार है जो प्रभु के वचन को प्रचार के लिए हमें योग्य बनाता है। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बातें हैं। जो दूसरी मुख्य बात है इस अध्याय में, उसका संबंध क्या है हमारे साथ, इसको हम देखें। यहाँ पर जो पाया जाता है 5वें अध्याय के 3 पद में, यहाँ लिखा है दूसरे पद में, आप कीजिएगा दूसरे पद में, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हुए हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। Through Him we have also obtained access by faith into His grace, this grace in which we stand, and we all rejoice in hope of the glory of God. हम जिस बात में आनंदित हैं, खुश हैं, वो परमेश्वर की आशा है, जो महिमा की आशा है, और उसमें हम आनंदित हैं, खुश हैं, और वो आनंद प्रभु ने हमें दिया है। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करते हैं कि आज प्रभु ने हमें वो आशा दी है जिसमें हम विश्वास करते हैं। और जिसके द्वारा विश्वास के कारण विश्वास किस बात का विश्वास, कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। गॉड एग्जिस्ट, और जो उसको ढूंढते हैं उनको प्रतिफल देता है। गॉड एग्जिस्ट बिकॉज ही एग्जिस्ट, ही इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, इटर्नल गॉड। नोबडी हैज पोस्टेड गॉड इन हेवन, nobody has sent God in heaven. You be there God for some time, then we'll think. No. He exists from eternity to eternity. वो है, और इसलिए कोई सत्ता चाहे संसार में आ जाए, चाहे ब्रह्मांड में कहीं आ जाए, उसको चुनौती नहीं दे सकती। वो पवित्र है, महापवित्र है। वो हमारे मनों को पढ़ता है कि हमारा मन कैसे है, शुद्ध है या उसमें गलत बातें हैं, और उसको शुद्ध करना चाहता है। शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। यीशु मसीह का आगमन हमारे मनों को शुद्ध करने के लिए था। इसलिए यहाँ पर इस बात को समझाया गया है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करते। महिमा की आशा, क्या महिमा की आशा? यीशु दोबारा आएगा, ये महिमा की आशा। आज बहुत से लोग दुनिया से चले गए। पिछले एक महीने 10 दिन में कितने लोग दुनिया से चले गए? वो लोग चले गए जो पासबान लोग थे, वो लोग चले गए जो कलीसिया के बड़े बड़े अगुवे थे, वो लोग चले गए जो कलीसिया के साधारण लोग थे, वो लोग चले गए जिनका संबंध मसीह परिवार से था और परिवार से है। वो लोग भी चले गए जो परमेश्वर की आवश्यकता को, जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ, नहीं मानते। हम उनका भी सम्मान करते हैं। और आज चारों तरफ हमारे देश में, पूरे विश्व में एक ऐसा वातावरण है जहां डर का माहौल है, लेकिन हमारे पास महिमा की आशा है। आशा क्या है? कि जब वो दोबारा आएगा महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसके बारे में मत्ती उसके 25 अध्याय के 31 पद और उससे आगे कहते हैं, Matthew chapter 25 verse 31 and following words. He says, when the Son of Man will come with his holy angels with all majesty and power, then all the nations will be gathered before him. सबको एकत्रित किया जाएगा। उस कार्य को परमेश्वर करेगा, और उसके आगमन की इस महिमा में बात को महिमा की आशा कहा गया। तो उस समय हम सब जो पहले यहाँ से चले गए, रलत कर गए हैं, या यहाँ से इंतकाल जिनका हो गया है, वो जिलाए जाएंगे, उनको महिमा का शरीर दिया जाएगा। और उसके बाद हम जो जीवित हैं बदल दिए जाएंगे,
और इसका वर्णन 1 कुरिन्ती 15 अध्याय 50 से 58 में पौलुस कहता है, बहुत साफ साफ कहता है। तो इसको महिमा की आशा कहा गया है और पौलुस इसको वर्णन यहाँ पर करते हैं इस पुस्तक में, जो रोमियो का 5वां अध्याय। तीसरी बात यहाँ लिखा है, केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा में लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मोर देन दैट वी रिजॉइस इन आवर सफरिंग। नाउ व्हाई सफरिंग हियर? I mean, talking about the Jesus dying for us on the cross of Calvary, giving us victory over sin as we believe in Jesus, then the first thing we talk about, St. Paul talks about suffering. Why suffering? Because we are living today in this world where we are going through a spiritual warfare. हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं, जहां पर हमारी आत्मिक लड़ाई जो है शैतान की अदृश्य सेनाओं से, शैतान के उन ताकतों से है जो आसमानों में लिखा है, हवा में है, और उसकी सेना जो है हमारे आत्मिक जीवन को नाश करना चाहती है। इसलिए दुख है, बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है और प्रकार की परेशानी, आरोप लगाए जाते हैं, आरोप और बहुत सी बातें, चिंताएं हैं, कठिनाइयां हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन में कठिनाई के रूप में संत पौलुस ने 2 कुरिन्ती के 11 अध्याय में अपने आत्मिक जीवन के कारण उन दुखों का वर्णन करता है। और वो क्या कहता है कि मैंने यहूदियों के हाथ से 5 बार 39 कोड़े का, 5 बार, तो 3 बार मुझे बेतों से मारा गया, और परेशानी और कठिनाई। और फिर वो कहता कलीसिया की चिंताएं मेरे दिमाग में बनी रहती, मेरे दिल में बनी रहती। तो क्या कठिनाइयों की कमी थी उसके जीवन में? इतनी कठिनाई, लेकिन उसके बाद भी प्रभु का वचन कहता है उसको, पौलुस मेरा अनुग्रह लिखा। यह लिखा है कि जब हम उस आशा में पा जाते हैं तो हम अपने क्लेशों में घमंड करें, क्योंकि क्लेश के द्वारा धीरज उत्पन्न होता। When you go through this atrocities and pass through these problems, God give you what is called patient. वो आपको धीरज देता है, वो आपको धीरज से परिपूर्ण करता है। लिखा है, साफ साफ लिखा है कि रीड दिस हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और यहाँ क्या लिखा है इसको हम पढ़ते हैं, नोइंग दैट सफरिंग प्रोड्यूसेस एंड्योरेंस। एंड्योरेंस, यू स्टार्ट एंड्यूरिंग, यू डोंट don't hurry. Why this is happening? I'll leave God and go. I'll leave Jesus and go. No. The problem, the much problem you endure, the much problem you go through, that will build your character. And this is very important. Sometime when we grow older in life, we become irritated. And it is natural. But for the Christ's sake, if something is possible and is coming, let us endure. For some time. Because this situation will not prevail for eternity. No. For some time. And in the Bible and in the Church of Jesus Christ, we have read, we have seen certain people who have gone through terrible time of persecution. But they were enduring. And because of their faith, now they are like stars shining in the heavenly realm. And even the writer of Hebrews says, they are like cloud of witnesses. इब्रानी को लेके कहता है कि वो जो दुख उठाते हुए चले गए, वो हमारे चारों तरफ बादल के समान है, गवाहों के बादल के समान। इसलिए हम उनके जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब आगे क्या लिखा है, व्हाट वी रीड हियर, एंड्योरेंस प्रोड्यूसेस कैरेक्टर, कैरेक्टर प्रोड्यूसेस होप। अब यहाँ पर लिखा है कि धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब हम धीरज धर कर दुख को सहते हैं, परेशानियों को सहते हैं, तो हमारा विश्वास मानो सोने के समान पाया जाता है। और जैसे सोना शुद्ध होता है, हो जाता है, हो जाता है, हमारा विश्वास शुद्ध हो जाता है। फिर हम प्रभु के सामने उसके योग्य बन जाते हैं और वो निरंतर हमें उस महिमा के लिए तैयार करता है।
क्योंकि ये जीवन जो है ये तैयारी का समय है, चाहे 50 साल का हो, चाहे उससे कम का से ज्यादा को, कुछ भी क्यों ना हो, समय जो हमारा शरीर, हमारा जीवन जो है संसार में, किसी किसी को 80-90 साल मिल जाते हैं, किसी किसी को 55 साल या उससे भी कम मिलता है, या 40 साल मिलते हैं. दिस आर ऑल इमेटेरियल. द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट, नॉट द क्वांटिटी ऑफ डेज. इसलिए हमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है. फिर आगे लिखा है यहाँ पर, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया. अंततः जो है हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है. एंड व्हाट इज वी रीड हियर, and endurance produces character and character produces hope, and hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. तो हम पवित्र आत्मा की चलाए चलना चाहते हैं. प्रभु इसमें हमारी मदद और हमारी सहायता करता है क्योंकि वो हमें बुलाता है और उसने हमें सेवकाई दी है. अब आगे यहाँ हम पढ़ते हैं चौथी बात जो रोमियो के 5 अध्याय के 6 पद से है. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा. किसी धर्मी के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे. अब यहाँ क्या लिखा है, फॉर वाइल वी वर स्टिल वीक at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. अब इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है. यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस ये कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध करा कि उसका पुत्र यीशु मसीह उस समय पर हमारे लिए मर गया जब हम पापी थे. और रोमियो के इसी पुस्तक के 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सब ने पाप किया. अगर कोई कहे कि भाई मैं तो बहुत धर्मी हूं, पापी तो वो लोग हैं, तो बाइबल कहती है ऐसा किसने बोल दिया तुम्हें? बाइबल में लिखा है कि सब ने पाप किया. सबके जीवन की जो अवस्था वो पाप में अवस्था, जब तक यीशु मसीह के पास आकर वो पश्चाताप ना करे. Unless until a person comes to Christ and repent of his sin or her sin, there is no hope for him or her. But the moment the person comes to Christ, Christ forgives that person and gives him life, which is eternal life. And St. Paul says, for while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Sin makes a person ungodly. Sin keeps a person away from God's fellowship. Sin is unrighteousness. And sin produces an ungodly life. But the grace of God makes a person godly when that person accepts Jesus Christ in his or her life. यहाँ पर इस बात को हमें समझने जानने की आवश्यकता है कि जब निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा, भक्तिहीनों के लिए मरा. किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी याव करे. इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है. 5वीं बात यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसलिए से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. अतः जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे. But God shows his love for us in that while we are yet still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. Now, I think you remember I used to tell during last year's Bible study that we had every evening and then thrice a week, as we are having now. John Wesley used to call his people in the class meetings, and that was held on every Thursday. And then the frequency was changed. It became more popular. The first thing they said, let us prepare ourselves that we should not face the wrath of God. Run away from the wrath of God. And to do that, repentance of God. आज जब चारों तरफ इस पैंडेमिक का समय है,
ये एक महामारी है, ये एक ऐसी महामारी है जिसकी वजह से लोग एक के बाद एक मर रहे हैं। रोज सुबह जब हम अपने मोबाइल को चेक करते तो न्यूज आता कि ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, और ये दुख की बात है। कल तक जो ठीक थे या बीमार थे, आज वो नहीं रहे। ये क्या दर्शाता है? ये जीवन क्षणभंगुर है। लाइफ इज सो अनसर्टेन, एंड सो अनसर्टेन लाइफ, it is a mortal life, not immortal. Therefore, we need to be aware of this fact and live our life so that His name be exalted and glorified. Because Christ wanted to save us from our wretched condition, that is why He became human being and died on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो थी इस संसार में इसलिए हुई ताकि वो हर एक जो अपने आप में पापी हैं, दुराचारी हैं, ईश्वर से दूर हैं, उनके लिए मरे और उनको मृत्यु के बंधन से आजाद कर दे। पांचवी बात यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बड़ाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। For God exhibit His love upon us. Verse 8, not 5th, but 8. But God shows His love for us in that while we are still sinners, Christ died for us. Now this is the love of God. For God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम कैसे बचाए जाते हैं? ईश्वर की दया, उसको करुणा के कारण। हम इसलिए बचाए जाते कि परमेश्वर ने पहल करा, हमने पहल नहीं करा। आज भी हमारे देश में बहुत से दुनिया के ऐसे देश है जहां पर लोग ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, अच्छे कामों के द्वारा, ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा, भक्ति करने के द्वारा, दान दक्षिणा करने के द्वारा। लेकिन बाइबल में यह लिखा है कि हमारे सारे भले कार्य ईश्वर के सामने मैले चित्रों के समान। तो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको उसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह पर विश्वास, कि वो हमारे इसलिए तो मरा, लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। He died while we were yet sinners. इसलिए गलतियों के 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर पुत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ ताकि जो व्यवस्था के अधीन थे उनको छुड़ाए और जो उसको नहीं जानते उनको भी छुड़ाए, जो विश्वास करते हैं। ये और आगे यहां लिखा है इसी 5वीं बात में, अतः जब हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। परमेश्वर से क्रोध से बचने का उपाय केवल यीशु मसीह पर विश्वास है। हम उससे भागकर कहां जा सकते हैं? बाइबल के अंदर भजन संहिता में लेखक कहते हैं, रचयिता कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके संगति से, आपके सामने से भागकर कहां जाऊं? अगर मैं पाताल में जाऊंगा तो वहां पर है, अगर मैं आसमान में चढ़ूंगा तो वहां पर है, मैं कहां जाऊं? उसकी नजरों से, उसकी उपस्थिति से इंसान भाग नहीं सकता। चाहे हम कोई भी उपाय करें वो अपर्याप्त है, क्योंकि वो हमारे मनों में रहता है, हमारे मन को देखता है। इसलिए हमें अपने आप को उसके सामने लाने की आवश्यकता है और पश्चाताप की आवश्यकता है, ताकि वो हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, और इससे पहले कि हमारा सांस समाप्त हो जाए उसके योग्य हम बन जाए। 6वीं बात और आखिरी बात 10 और 11 पद, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा मेल मिलाप हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। The 6th thing, 10th and 11th verse. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life? More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Now, what is the meaning of reconciliation? इस मेल मिलाप का मतलब क्या है? इसका अर्थ बताया गया है यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 पद में, जहां लिखा है John 1:12 says, anyone who received him
have received him has become the son or daughter of God. जिसने उसको ग्रहण किया उसको परमेश्वर के संतान बन जाती। यह है मेल मिलाप का अर्थ। चाहे हम कहीं के रहने वाले क्यों ना, हम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी देश के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीसस हैज कम फॉर द एंटायर यूनिवर्स। यीशु मसीह का आगमन पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए हुआ। यीशु मसीह केवल मसीहों का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह केवल उनका परमेश्वर नहीं है जो उसके चेले हैं, वो सबके लिए आया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। There's only one mediator before God and man, not many. अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह कहता कि मैं भी उनमें से एक मार्ग हूं, मुझ पर विश्वास करो, नहीं तो किसी पर भी विश्वास कर लो, कुछ नहीं होने वाला। हम में से बहुत से लोग सिखाते हैं ना कि मार्ग बहुत से हैं, जाना वहां जी नहीं, ऐसा नहीं है। मार्ग भी एक ही है। जहां हम जाना चाहते हो एक ही जगह है, परमेश्वर का सिंहासन, वहीं पहुंचना है हमें। लेकिन मार्ग भी एक ही है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ आज से 2000 साल पहले, तो स्वर्गदूतों ने गड़ेरियों से कहा, तुम डरो मत, डोंट बिकम होपलेस, डोंट हैव द एप्रीहेंशन ऑफ व्हाट विल हैपन टू अस, क्योंकि आज देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ मरियम जिसकी माँ उसके सामने चरनी में रखा पाओगे। ओनली वन सेवियर, बट देयर इज ओनली वन गॉड। इस बात को मुझे और दुनिया को समझाने की आवश्यकता, यही आपकी गवाही है। लोग आपके सिद्धांत की खिलाफत कर सकते हैं, लोग आपके विचारों की खिलाफत कर सकते हैं, लोग आपके विचारों को त्याग सकते हैं, आपका तिरस्कार कर सकते हैं। भाई आप क्या क्या सिखा रहे, क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी गवाही देना, विटनेस कि मैं एक दिन पापी था, एक दिन आत्मिक रूप से अंधा था, अब मैं देखता हूं, कोई व्यक्ति कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करा, क्योंकि वो आपकी गवाही है। उल्टा वो सोचेगा कि मैं भी कैसे आजाद हो जाऊं, मैं भी पाप से मुक्ति कैसे पालूं। और इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर इसको साफ साफ पौलुस कहते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल मिलाप हो जाने से उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। ऐसी बात को पौलुस ने यहाँ पर कहा, जो मैंने आपके सामने पहले पढ़ा था, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और उसके 16 पद से हमने देखा था। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई यीशु मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, ये हमारा और आपका उपाय नहीं है। यीशु मसीह का आगमन किसी व्यक्ति या मनुष्य के उपाय के लिए नहीं, कारण नहीं हुआ कि हमारे पूर्वजों ने सोचा था, हमारे संतों ने सोचा था तो परमेश्वर यीशु मसीह आ गया। जी नहीं, परमेश्वर ने सोचा था तभी तो आ गया, ये उसकी योजना है, तभी वो आ गया। इसलिए यदि कोई यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारे साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मित्रों, ये एक धन्य सुसमाचार है, मेल मिलाप का सुसमाचार है जो उसने हमें दिया है। तो हमें क्या करना है? जब तक संसार में हमारी सांस चलती है, अपने जीवन के बारे में लोगों को गवाही देनी है कि क्या भाई और बहन, क्या आपने यीशु मसीह को स्वीकार करा। कल शाम के समय में कुछ गवाही सुन रहा था, 2 बहनें गवाही दे रही थी और एक भाई ने गवाही दी। भाई ने कहा कि उनका बेटा बिल्कुल खत्म हो गया था और कितना पैसा लग गया है, वो यहाँ केरल के थे लेकिन अमेरिका गए और वहां बेटे का इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अब आप परमिशन दो कि ताकि इसको हम कोई ऐसी दवा दे दे कि खत्म हो जाए। उसने परमिशन दे भी दी। तब उसको याद आया कि कुछ लोग मिलते हैं जो प्रार्थना करते हैं। फिर उन्होंने प्रार्थना शुरू करी, उसका बेटा जो मर रहा था वो ठीक हो गया। एक लड़की ने गवाही दी कि वो बिल्कुल पागल के समान, यही दिल्ली की रहने वाली, घर का सामान तोड़ना, माँ बाप परेशान थे। उसने कहा कि हमारे घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे, लेकिन
हम एक प्रार्थना में गए तो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया और लड़की बच गई। आज वो दोनों बहनें सुसमाचार का प्रचार करती हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य, उसने आपके जीवन को इसलिए नहीं बचाया कि आप खुश हो जाएं, और इसलिए बचाया कि उनको जो जीवन में दुखी है, परेशान है, आत्म रूप से अंधकार में है, उनको अपनी गवाही दे सके। इसलिए आपका मेल मिलाप उसके साथ हो गया। क्या आपने इस मेल मिलाप का अर्थ को समझा है? परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की हुई पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा आज आपने हमसे बातचीत करी। हे प्रभु, जब फिर से इस साल हमने वीकली बाइबल स्टडी की शुरू करा, हमारी प्रार्थना प्रभु इस कड़ी में आप हमें जोड़े प्रभु, ताकि हम अपने मित्रों को भी जोड़े और इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करें। जो वचन आपने दिया प्रभु रोमियो के 5वें अध्याय से, जो बातें हमने आपके वचन सीखी प्रभु, उस पर बने रहे। लॉर्ड, वी प्रे फॉर द बाइबल स्टडी दैट वी हैव स्टडीड नाउ, though it was not very depth study, Lord, but at least some fact that has been shared with us today. We pray, God, that help us to study deeply and understand the deep meaning of this word, because this is our life and this is God talking about His plan of salvation to the world, to each and every human being. प्रभु, हम चाहते हैं वचन के बीच आज बोया गया बैठ न जाए, पर आपका आत्मा उसको हमारे हृदय में सींचे, फलवंतित हो, जिसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो। Lord, we pray for the word, let it become fruitful in our hearts, bring forth 100, 60 and 30-fold fruit. Bless this congregation, bless each family, especially pray for those who are suffering, Lord, touch and heal them. Those who have lost their loved ones, Lord, give them peace which passes all understanding. Lord, as we are not coming to church because of the lockdown, help us, Lord, that in our home, as we are locked down, Lord, inside our home, we should remain very careful and become careful for our senior citizens, our children, so that we are saved by your grace and able to grow in you. Bless us today as we go for our bed, Lord. Give us good night rest. Protect and guide us. Bless our church and the leadership. Pray for our Bishop Subodh Mandal, Madam Sudipta Mandal, all the DSS, all the pastors, and the congregation, especially South Delhi district. Bless each one of us. Bless us and guide us. Help us, Lord, that we may be helping others also who are in need. In Jesus' precious name I pray. Amen. Let us receive the benediction now. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, especially the family of English congregation, Hindi congregation, and Nepali congregation of Episcopal Methodist Church. Rest His peace upon us, now and forevermore.